Good morning and good afternoon. Thank you, runners, for being here on this another episode where we talk to veteran comrades runners so that first timers, new runners, सबको थोड़ा ज्ञान मिले, सबको थोड़ा advice मिले, सबको insights मिले. And of course, today we have uh, a legendary runner from India for us, a legendary amateur runner, Dilip Patil sir, who has been running for, I'm sure, more than 10, 12 years, but he has run nine comrades. And now this year in 2026, 25, he will go for a 10th comrades. So that will be the third green number for us in India. It's an extremely proud moment for India. And that's not it. Over the years, मैंने पाटिल सर को देखा है, he has always acted as a mentor and guide for every other runner around, whether you are training for comrades or full marathon हो या half marathon हो. And पहले वो बैंड्रा रहते थे, अब अमरावती रहते हैं, तो अमरावती में also now he has started the running community in Amravati. He organizes the Amravati Marathon every year. इस साल Amravati Marathon had 3,000 runners, and now we are also seeing an active participation for comrades from Amravati. Last year 6 लोग थे, इस साल 12 लोग हैं. तो it is truly a giving back to this running community. What Dr. Patil has benefited, Patil sir has benefited from running. He is now giving back to the community by ensuring that lot many runners run and experience the joy of distance and long distance running. So 1 hour we have. I will ask Patil sir all the right questions, which are going to be, I'm sure, very helpful for all of us. And I would also urge everyone to use the chat box to put your questions. Then in the last 10-15 minutes, we will look at those questions, and I will ask those questions to Patil sir so that he can answer all of them for us. So sir, थोड़ा एक before we start, आप थोड़ा just give us a brief background about you and how you started your running quickly. So then we will move to comrades. Okay. Thank you, Kashyap, for giving me this opportunity to share my knowledge or information about the Comrades Marathon. I started my running in 2005, first Mumbai Marathon. I was in the sales tax department in Mumbai, and there was a group of officers. We were discussing about someone was interested in marathon, and he told us some marathon is going on in Mumbai, so why not participate? So everybody was little reluctant. ये क्या है मैराथन, पिछले भागना वगैरह वगैरह. इनिशियल जो होता है वो था, हिकअप था. But on his insistence, we registered for a dream run. But after say and then started a little practice here and there. So I realized I can run more than 6 kilometers. So I shifted to half marathon, and I did my first half marathon in 2005. 2005 to 2009, I did half marathons, and 10 onwards, I am doing full marathons. अच्छा. Except this 2025, I was little injured, so I skipped 2025 this year. So अच्छा. हाँ. और मुंबई में टॉप गियर एक ग्रुप था जिसमें कॉमरेड्स का काफी एक मतलब कल्चर था. इनिशियली 2011 में हम लोग तीन थे, मैं, प्रदीप कड़ू या रामदास, और तीन लोग थे. और बाकी चार लोग और थे जो हम लोग प्रैक्टिस करते. सतीश था, सुशांत करके रहा, देन एक डैनी था ब्रिटिशर. हम लोग छह लोग थे. और सेठ दो, अमित सेठ और वो, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन देयर ओन, बट छह लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे दोनों आदमी. वी एंजॉयड दैट टाइम. तो दिस इज माय जर्नी. अभी आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग हाफ मैराथन इन अमरावती. बट व्हाट आई रियलाइज, the local potential has to be generated to make the survival of the event. So I started gradually training the local runners from here. And now the group is day by day, people are joining, and now around 100 to 120 runners are there in the group, but around 40 daily comes for the training.
अभी इसमें से ऐसा है कि फुल मैराथन के लिए तो अराउंड 40 है, मतलब अभी जो लोनावाला हुआ ना उसमें अराउंड 30 रनर्स थे अमरावती से। ओह वेरी नाइस। हाँ, और अभी जो कॉमरेड क्वालिफाई के लिए जो अटेम्प्ट हमने किया सभी ने, तो पूना में 27 were there in full marathon and some 15 for half marathon. So this is the potential of Amravati, and day by day हम्म the running culture is improving here. हम्म। Yes. तो So या आई मीन, तो दिस इज वेरी नाइस राइट। जैसा कि खुद तो हम 15 10 20 साल से भाग रहे हो, हाँ एंड हाँ, नाउ सेम वे राइट, यू आर एनकरेजिंग मोर एंड मोर रनर्स टू, एज आई सेड, एक्सपीरियंस रनिंग एंड गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ this activity and this correct, sport. So correct, let's move to comrades. So you correct, you correct. Okay. I see people like us always get this question, इतनी बार क्यों? अच्छा अच्छा, ओके, इतनी बार क्यों? बार ओके, बार ऐसा तो क्या है क्या कॉमरेड्स है? में कि आप जाते हो? Okay. So I will answer the question first, and then I will shift to what I plan to do. या uh, 2011 में, when what happened, Amit Seth once came to our training session हाँ at MIG, and he हाँ talked about the other marathons, and casually he talked about the Comrades Marathon. हाँ So तब तक तो हमें फुल मैराथन कोई पता नहीं था, 2009 तक। हाँ। ऐसा लगता है कि दुनिया में खाली मुंबई में मैराथन होता है। दैट वाज द हम्म। लेवल ऑफ नॉलेज एट हम्म। दैट टाइम। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि अमित कैसा है दिखने में, ही डजंट लुक लाइक ए स्पोर्ट्स पर्सन। या हाँ, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन है कि अगर, तब तक उसने ना फ्लोरेंस है, प्रॉग है, और देन ड्यू मेडॉक है, ये काफी मैराथन किए थे। हाँ ही जस्ट शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा यार ये आदमी कर सकता है, तो हम इतने दिन से क्या कर रहे थे, 5 साल से यही बैठे हम मुंबई मुंबई कर रहे हैं। करेक्ट। दैट चेंज माई टोटल व्यू टुवर्ड्स द मैराथन। और मैंने हाँ एक दो लोगों को पूछा कि भाई, इमीडिएटली आई चेंज माई रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हाफ टू फुल इन मुंबई हाँ 2010। हाँ हाँ उस हाँ। टाइम बहुत इजी था रजिस्ट्रेशन, 2010 में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, आप हाफ का कर सकते हो। और करेक्ट। 10 का फुल मैराथन करने के बाद में इमीडिएटली आई डिसाइडेड आई विल गो फॉर द कॉमरेड हम्म 2011। हम्म। अभी उस टाइम ट्रेनिंग कोई ऐसा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कोई नहीं था, नहीं था। कॉमरेड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारे जो कोच थे डॉक्टर अजय, ही वॉज जस्ट लिमिटेड टू द फुल मैराथन। उसके कभी कभी उसने कॉमरेड नहीं की थी, और बाकी भी खाली सतीश वॉज अप्रोचेबल, अदर कोई अदर अप्रोचेबल नहीं था। हम्म सतीश, क्योंकि सतीश ने किया था, अमित ने किया था, और एक अमित का कोई रिलेटिव था, दलाल समथिंग। हम्म तो ये तीन लोग थे, मगर सतीश वॉज अप्रोचेबल, सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग विद सतीश फॉर लॉन्ग हम्म रन। हम्म Day to day training we used to do on our own, myself, Pradeep Kadu, and that Ramdas Pulapaka. हम्म। तो अ, ये एक मैं हमने यही सोचा था कि जाते हैं, जैसा हुआ करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीट ही करना। दैट वाज हम्म। व्यू टुवर्ड्स द कॉमरेड्स। सब चलो एक फॉरेन ट्रिप हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो अगर हाँ, फेल हुए, घूम के आ क्योंकि जाएंगे। हाँ, तो कैसा था कि अमित ने हमें काफी, जो उसने एक साल उसका क्यों फेल हुआ था, क्योंकि वो 56 किलोमीटर काफी क्रैम्स आए, एंड बिकॉज ऑफ द क्रैम्स ही हैज टू विड्रॉ। तो हमें भी लगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बट चलो कोशिश करते हैं। हाँ ट्रेनिंग थोड़ा सीरियसली किया, वॉट एवर हमें जो भी लगा मुझे, क्योंकि आई वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू फॉर ट्रेनिंग। और रामदास तो और परीब दोनों थे, तो उससे मैंने लीड लिया, फिर वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, माइलेज कितना रखना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह सब सब करके। तो हम सब हो गए, तो प्लान था कि अकरा एक करके सो जाते हैं बस, बाकी हाँ आगे कोई प्लान नहीं है। करेक्ट। दैट वाज आवर इनिशियल थॉट प्रोसेस। बट 11 होने के बाद किसी ने कहा कि ये करने के बाद ना एक डाउन भी करना चाहिए, बैक टू बैक। हाँ, अप रन देन डाउन रन। और जब हमने किया ना, तीन लोगों ने, तो हमारे ग्रुप में से और तीन हो गए कि हमें भी अभी करना है। हाँ तो फिर एक कोई कमठेवाड़ था, देन कोई माधव वगैरह, ऐसे 6 लोग, फिर 6 वगैरह, चलो अब इनके साथ जाते हैं। तो दिस पे स्टार्टेड। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि 10 करना है या 5 करना है, चलो एक हुआ ना, वन बाय वन ऐसा है। तो उसके पीछे कोई एक कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं था कि 10 करना है। मुझे तो ये जो अपना अमित 2 3 बार पहनने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा इतने बार क्यों जाता है, ये क्या जरूरत है इतनी बार जाने की। हम्म। हो गया है एक बार दो बार, बट ऐसा है कि ये इवेंट ऐसा है कि वंस यू डिड दैट, यू फॉल इन लव विद दैट इवेंट। आपको हाँ ये एक मिलता है, मतलब व्हाट एवर जॉय, व्हाट एवर मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दैट इज अनकंपेरेबल। करेक्ट।
हाँ, तो ये हर बार फिनिश लाइन क्रॉस करने के पहले कुछ 10 मिनट ऐसा लगता है दिस इज माय लास्ट कॉमरेड, नेक्स्ट ईयर मैं कुछ भी हो जाऊंगा। करेक्ट और करेक्ट। व्हेन यू क्रॉस द फिनिश लाइन योर थॉट टोटली चेंज। अरे हम्म। तो तकलीफ तो होती रहती है। हाँ, कितना मजा आता है फिनिश लाइन क्रॉस करने का, उसके लिए फिनिश लाइन क्रॉस करने का जो मजा है दैट इज द अल्टीमेट करेक्ट। जॉय, जॉय है। nobody can buy it, nobody can give it to you, you have to do on your own. तो दैट इज द रीजन आई एम कमिंग। अभी 2022 में डिसाइड किया था अमरावती आने के बाद कि चलो अभी ग्रुप मुंबई से शिफ्ट हो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा तो क्या करना। मगर एक लेडी थी, वो अभी ग्रुप पे नहीं है, उसने कहा कि मैं आती हूँ, तो देन वी स्टार्टेड। दो लोगों ने, 2023 में। हम्म तो हम दो ही थे अमरावती से, तो बाकी लोग भी फिर मोटिवेट हो गए। 2 से 6 हो गए, 6 से 12 हो गए। तो मैंने हम्म। कहा चलो इनके इनका भी ट्रेनिंग होता होगा और मेरे भी होते रहेंगे, तो दिस वे द जर्नी कंटिन्यू एंड आई होप इट विल कंटिन्यू फॉर। इट विल। हाँ लेट अस सी। तो कश्यप, जो अपने ग्रुप पे क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ आई हैव लिस्टेड आउट। एक तो मैक्सिमम है कि वीसा, व्हाट इज द हाउ टू गेट द वीसा। हाँ हाँ एक सेकंड है कि कुछ एयरलाइन टिकट्स के बारे में क्वेरीज आती है। हाँ। देन हाउ टू ट्रैवल टू पीटर्सबर्ग ऑन अ रेस डे। करेक्ट। बराबर, थर्ड ये है। दूसरा एक जो मुझे शेयर करना, जस्ट आई वांट टू शेयर जनरल प्रिकॉशंस ऑन द रेस डे, क्या हाँ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एंड देन लिटिल अबाउट ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग का हाँ। हर एक का आप अपना सेटल करेक्ट। होगा अब तक, क्योंकि हर एक के कोच है, उन्होंने उनको कुछ गाइडलाइंस दिए होंगे, दे मस्ट बी फॉलोइंग। तो उसमें ज्यादा नहीं जाते, जस्ट जस्ट हिंट अबाउट द ट्रेनिंग। सो लेट अस कम टू द वीसा प्रोसेस। हम्म साउथ अफ्रीकन वीसा, वैसे देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल कंपेयर टू द यूके और यूएस वीसा। हम्म यू हैव टू डाउनलोड दिस फॉर्म है, DHA 8411, दिस इज द फॉर्म फॉर साउथ अफ्रीकन वीसा। इट इज अवेलेबल ऑन साउथ VFS साइड है। किसी को भी अगर चाहिए कि ये फॉर्म डाउनलोड करना है, तो यू जस्ट गो टू द गूगल, South African visa for Indian citizen. Okay, हम्म so they will take you to the particular site, and then you can just search for this form application for entry into the South Africa. ठीक है। अब हम्म। ये जो फॉर्म है ना, दैट फॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देयर इज नो डिफिकल्टी। ऐसी फॉर्म फिलअप करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, काफी इजी क्वेश्चंस है। खाली एक दो जगह जहां पे कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अभी सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में जहां तक मुझे मैंने सुना सर है या मिलता मुझे नॉलेज। सिंगल एंट्री है। इतने हाँ, सालों से कुछ भी लिखो सिंगल एंट्री बराबर देते हैं। बराबर, हाँ हाँ हाँ। तो अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। ओके व्हाट इस बार मैंने क्या किया है, आई एम नाउ इन टच विद द साउथ अफ्रीका कॉन्सुलेट एंड आई ओके। एम आल्सो इन टच विद साउथ अफ्रीका टूरिज्म बोर्ड। हाँ हाँ हाँ। सो हाँ, अभी हम क्या करेंगे कि पहले मैंने एक लिस्ट कोलेक्ट किया था गूगल फॉर्म से। ओके और वो लिस्ट उनको भेजा है, बट नाउ दे वांट द लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स आल्सो इफ दे आर गोइंग। ओके। तो वो फैमिली मेंबर्स का भी लिस्ट में डाल दूंगा उसमें, सो दैट अच्छा। पूरा लिस्ट उनको जाएगा। सो व्हाट ओके दे हैव अश्योर्ड मी इज दे विल हेल्प इन फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ वीजाज। ओके। ओके, 3 हफ्ता नहीं लगेगा, 8-10 दिन में कर देंगे वन। एंड दे आर ट्राइंग फॉर पीपल हु वांट मल्टीपल एंट्री ओनली फॉर टू रन कॉमरेड्स। मतलब ऐसे ओके नहीं कि ओके जनरली ओके। सभी लोग मल्टीपल एंट्री मांग लेंगे। सो तो इफ यू रन 3 comrades हाँ हाँ। एंड यू वांट टू रन मोर, ओके। राइट, सो कैन वी गेट मल्टीपल। तो वो एक काम चालू है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। डेटा ओके सबसे आप लोगों से सबसे मांग के ग्रुप में कोलेक्ट करूंगा। ओके। सो दैट इज आई थिंक वो वीजा के लिए। अभी वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च, आई थिंक अगर आपका पासपोर्ट बिजी नहीं है तो मार्च में वीजा करा लीजिए, डोंट वेट फॉर मे। करेक्ट वो करेक्ट। एक सिंपल एडवाइस है, भले फिर 10 दिन ज्यादा लगे तो भी अभी अपने को टेंशन नहीं होगा। एग्जैक्टली। राइट। या तो इसके बारे में कैसे, मैंने ऐसा सुना था कुछ रनर से कि उन्होंने मतलब बाय फ्लूक मल्टीपल एंट्री एंटर किया था। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ। हाँ, बट किसी को है ना 5 साल के लिए वीसा मिला, ऐसा मैंने सुना था। यानी वो बहुत रेयर है, एक बार किसी को वाई नॉट 2 साल भी मिला है, 3 साल भी मिला हाँ, है, बट इट इज वेरी रेयर। तो रेयर रेयर रेयर, उसके बाद वी में। डोंट नो हाउ समवन गेट्स इट, किस कैसे मिलता है। करेक्ट। मांग लो, मांगने में क्या है, मल्टीपल हाँ हाँ एंट्री करेक्ट, तो मांगने में उसमें जो क्या है है। डबल मल्टीपल एंट्री सी बट करने में कोई बिकॉज ऑल ऑफ अस आर आस्किंग वीजा बेस्ड ऑन अ कॉमरेड्स इनविटेशन लेटर। हाँ हाँ
that invitation letter is for that race only ना, तो logically you cannot get multiple entry visa based on that letter. बराबर है। अभी अभी अगर वो विद इन दैट 1 मंथ आप मल्टीपल जा सकते हो, बट देर इज नो पॉइंट इन गोइंग। हाँ, correct. So अभी that's what we are trying for people who have run more than 2-3 comrades and want to run more, तो वो कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है। आप सर रेस डे गाइडेंस दीजिए ऑन द रेस डे। अच्छा अच्छा अच्छा, What ओके is your typical race day ओके from morning 2 o'clock and through the race, ओके fueling, breakfast, pacing strategy, ओके। थोड़ा हाँ ये रन के ये बारे में बात करते हैं। हाँ वीसा के बारे में जस्ट आई विल ब्रश इट हाँ अप, ज्यादा या डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि उनके लिए उसमें जो है वीसा फीस नील, वीसा फी कुछ नहीं है। वो जो वीएफएस प्रोसेसिंग वाले हैं दे चार्ज हाँ, अराउंड 2000 समथिंग। करेक्ट, 2-2,500 रुपए और वो लेते हैं, वो उनका फी है बस। करेक्ट, और वो जो है वीसा आपको पासपोर्ट घर में कुरियर करने के लिए दे चार्ज अराउंड 885। अभी करेक्ट। आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें जो आपका पासपोर्ट है वो इट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 30 डेज, बराबर है। हम्म और वो उसके साथ में ओल्ड पासपोर्ट भी चाहिए। अगर आपका ओल्ड पासपोर्ट है वो एक्सपायर हुआ है, आपने नया पासपोर्ट निकाला है और यू आर अप्लाइंग फॉर साउथ अफ्रीकन वीसा, देन यू हैव टू अटैच ओल्ड पासपोर्ट आल्सो अलॉन्ग विद द न्यू वन। हम्म ये जो वीसा फॉर्म है, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अमरावती के जो लोग हैं ना, अभी उस उन्होंने कुछ ये नहीं किया है, मतलब अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं किया है। हाँ, बट ठीक है, अभी बहुत टाइम है पार्टी सर। हाँ, तो जो वीसा एप्लीकेशन फॉर्म है, दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड इन ब्लैक इंक एंड ब्लॉक लेटर्स, ब्लैक इंक एंड ब्लॉक लेटर्स। अभी इसमें जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, प्रूफ ऑफ फंड, बैंक स्टेटमेंट जो होता है 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, और बैंक उस पे सिग्नेचर चाहिए बैंक ऑफिशियल के। और उसमें जो अमाउंट बैलेंस है दैट शुड बी मिनिमम इक्विवेलेंट टू द 3000 साउथ अफ्रीकन रैंड। 3000 रैंड मीन्स 15,000, इज वेरी स्मॉल अमाउंट, सो दैट विल नॉट बी अ क्वेश्चन फॉर एनीबडी। हम्म। प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग, होटल बुकिंग का जो कंफर्मेशन है वो आपको वीसा जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें दैट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अभी जो लोग जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, दे आर डूइंग द सर्विस, उनको एक लीव सैंक्शन चाहिए मेंशनिंग दैट दे आर गोइंग फॉर द कॉमरेड्स एंड फॉर दैट पर्पस द लीव इज सैंक्शन। उसमें हम्म स्पेशल मेंशन होना चाहिए। और वो कितने दिन तक वहां छुट्टी उनको सैंक्शन की है, पर्पस क्या है, ये सब जो लेटर ऑफ सैंक्शन होता है लीव का उसमें आना चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में पूछे, मगर वैक्सीनेशन का अपने लिए कोई, दिस इज टोटली इरेलीवेंट फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम सर्टन कंट्रीज। अगर वहां से साउथ अफ्रीका जाते हैं तो देन यू रिक्वायर दैट एलो फ्लू वैक्सीनेशन, पर अपने लिए वो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। करेक्ट। फ्लाइट का टिकट आपको जो है रिटर्न टिकट अटैच करना होता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है, कॉपीज ऑफ फ्रंट एंड बैक पेज ऑफ पासपोर्ट, उसको बायोडाटा पेजेस बोलते हैं, वो चाहिए। एक ये कवरिंग लेटर हमेशा होता है, तो काफी लोगों की क्वेरीज आती है, व्हाट इज द कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर इज यू आर एड्रेसिंग टू द साउथ अफ्रीकन एम्बेसी दैट यू आर गोइंग टू द साउथ अफ्रीका फॉर कॉमर्स मैराथन, और यू विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ पीरियड सो एंड सो। और उसमें ना आपका पासपोर्ट नंबर आना चाहिए, पर्पज ऑफ विजिट आनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ विजिट चाहिए, और उसके एक्सपेंसेस जो है, वो जो ट्रिप आप कर रहे हैं उसके एक्सपेंस, हु इज गोइंग टू बियर योर एक्सपेंसेस। नॉर्मली जो होता है इसमें ऐसे ही चाहिए कि द एक्सपेंसेस विल बोर्न बाय द बोर्न बाय माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन सेविंग। कंफर्मेशन कॉमरेड से जो होता है, कंफर्मेशन लेटर सभी को एक ईमेल भेजना होता है, और वो ईमेल को इमीडिएट रिप्लाई करते हैं कंफर्मेशन का। दैट ईमेल इज, जिनको भेजना है वो JARED@commerce.com, ये ईमेल आईडी है जिसके ऊपर तो आप सुन, एक ये सब रिक्वेस्ट भेज। हम चैट में डाल देंगे पाटिल ठीक है, सर। विल पुट ओके ऑल दिस इन द चैट फॉर एवरीवन's गाइडेंस ओके इफ पीपल स्टिल नीड गाइडेंस, बट ओके, अदरवाइज इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, करेक्ट करेक्ट, मुझे भी है ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये ठीक हाँ है। सो आई वाइंड अप, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 वर्किंग डेज चाहिए, और हाँ इसके लिए प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट करेक्ट वॉक इन एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट। करेक्ट। अभी हाउ टू ट्रैवल टू द पीटर्समार्टिनबर्ग, कुछ लोगों ने इसमें ग्रुप में क्वेरीज थी, अगर वो लोग हैं तो That is उनकी। correct. So first question is it necessary to go in the morning to stay on Saturday to Peter Maritzburg? Go on a Saturday, or you can go in the morning from Durban also, ओके ओके, right? So what is your experience? करेक्ट Peter करेक्ट, Maritzburg जाना जरूरी है हाँ हाँ हाँ, सैटरडे को कि डरबन से ही कर सकते हैं? मैं तो करेक्ट ऑल द 9 ईयर 8 years आई हैव बीन एट डरबन ओनली, मैं कभी ओके पीटर मैरिट्सबर्ग रहा नहीं हूँ।
ठीक है ना। तो अभी इसमें जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ हाँ। दोज हु आर अटेंडिंग द मीटिंग, देयर आर थ्री ऑप्शंस टू ट्रैवल टू द पीटर्सबर्ग. द फर्स्ट इज बुक अ होटल इन पीटर्सबर्ग and reach there on Saturday. Okay, that is one option. Second option is book a bus ticket. Comrades जो ऑर्गेनाइजर होता है उनकी बसेस जाती है दरबान से, तो यू हैव टू बुक द टिकट्स एंड देन But ट्रैवल that बाय is दैट. not on Saturday. That goes in the morning on Sunday. मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग होता है बराबर. और थर्ड ऑप्शन है कि आप 8-10 लोग हैं, ये एक मिनी बस करो एंड देन ट्रैवल टू द दरबार. अभी ये तीनों ऑप्शन है ना, मैंने ड्यूरिंग दिस 9 ईयर आई हैव एक्सपीरियंस. होटल पीटर्स मारीबर्ग इज अ स्मॉल सिटी. तो जिनको अभी मिला है उनको मिला है, मगर अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ होटल फॉर पीटर्स मारीबर्ग, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द होटल इन पीटर्स मारीबर्ग राइट नाउ. तो दैट ऑप्शन इज टोटली आउट ऑफ Close. क्वेश्चन. हाँ. ये जो बसेस ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये ठीक है, बट कैसा है कि ये बसेस स्टार्ट फ्रॉम दैट होटल ट्राइडेंट. Expo. हम्म. हाँ, एक्सपो से ट्राइडेंट से होती है, और वो दैट बसेस लीव क्वाइट अर्ली, 1:30 बजे 2 बजे ऐसे बसेस होती है वो. तो उसमें कैसा है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द बस. बस जो होता है वहां पे आपके होटल से, तो मॉर्निंग यू हैव टू टेक अ कैब, तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट द कैब एट 1 o'clock और लाइक दैट. तो वो एक वे आउट है, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम पीपल ट्रैवल बाय द बस, बराबर है. बट यू इफ यू आर रीचिंग देयर एट 4 o'clock, सो यू हैव टू बी देयर 4 to 5:30 इन ओपन, बराबर है. एंड समटाइम्स द वेदर इज सो, मीन इतनी ठंड होती है Cold. Yeah, इस it is cold there. Correct. बहुत बहुत होता है, विंडी भी होता है, तो टू स्टे ऑन ओपन इट्स वेरी डिफिकल्ट. थर्ड ऑप्शन आई थिंक दिस इज बेटर. एंड एक 10-12 लोग हैं, अपने एक मिनी बस करो, वो होटल के पास आएगा, ही विल पिक अप एंड ही विल ड्रॉप टू द दरबार. Correct. अभी Correct. Yeah. पीटर्स So मारी. yeah, either you book your own car for 3-seater, 4-seater, 6-seater car, or करेक्ट. you book your own 15-seater minibus, करेक्ट. tempo, हाँ हाँ and then you go. That is the most convenient option. अगर हम हाँ डरबन ही रह रहे हैं, हाँ 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 एंड वो 3 बजे भी अगर हम निकलेंगे तो हाँ, 4 बजे तक पहुंच आराम जाएंगे. से साढ़े पहुंच तीन जाएंगे. बजे निकलेंगे तो 4:30 पौने 5 बजे पहुंचेंगे. करेक्ट करेक्ट. नो प्रॉब्लम. एक वॉशरूम ब्रेक लेके ही अपना जो सेक्शन है वहां पे एंटर करने वहां का. पे जा बिकॉज एक सकते बार हैं. एंटर करने के बाद यू कैन नॉट गेट आउट, बिकॉज द करेक्ट. सेक्शन अपना ये सेक्शंस बिकम वेरी क्राउडेड. राइट. और सो वो कैसा वो है, एक ये इसका क्लियरली चैलेंज है. एडवांटेज है कि ये जो मिनी बस है, इट गोज क्लोज टू द जो ये होते स्टार्ट लाइन है, उसके काफी क्लोज जाके वहां छोड़ते हैं. अगर आपको लगा कि बाहर काफी ठंड होती है, यू कैन कम बैक टू द बस, सिट देयर फॉर सम टाइम. लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था. हम्म. लास्ट ईयर 2023 में हम हम्म. लोग बस में थे, 10-12 लोग. 2-3 लोग नीचे आए और इतनी ठंड थी, मतलब इट वॉज वेरी कोल्ड एंड विंडी, वो सब भाग के वापस आ गए. अरे बाहर में बहुत ठंड. तो वी आर देयर फॉर अराउंड 5:50, वी आर इन द बस. अभी हम्म. देखना थी 15 मिनट हुए, फिर देन वी ज्वाइन द स्टार्ट लाइन. तो दिस इज बेटर ऑप्शन राइट नाउ. अगर किसी को बस टिकट लेना है तो उनको एक्सपो से बस टिकट लेनी पड़ेगी, टाइमिंग देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू रीच टू द ट्राइडेंट होटल नियर द एक्सपो, एंड फ्रॉम देयर द बसेस स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग. करेक्ट. दैट इज द चीपेस्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है करेक्ट कि करेक्ट. वहां से ले लो एंड देन यू गो इन द मॉर्निंग देयर, एंड सो विच इज ऑल्सो ओके. अदरवाइज आपका ग्रुप है 4-6-10 लोग है तो कार बुक कर लो या करेक्ट. तो स्मॉल बस बुक कर लो. हम्म. वैसा है. तो अभी पाटिल सर, रेस डे में आपका क्या प्लानिंग होता है, कैसे होता है, आप थोड़ा ओके. एडवाइस दीजिए. ठीक कि है ठीक. मॉर्निंग में राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट से लेके बराबर है. रेस अभी प्लानिंग, कट ऑफ प्लानिंग, फिनिश, अभी फ्यूलिंग ड्यूरिंग द रेस, ओके ओके. व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? अच्छा. अभी नॉर्मली अभी जो सब जो भी रनर्स है, दे हैव टू रीच एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर टू द स्टार्ट. 30 मिनट्स पहले आपको स्टार्ट में अपने सीटिंग में खड़े रहना चाहिए, दैट इज करेक्ट. एक्सपेक्टेड. अभी डिपेंड्स अपॉन वेदर, यू हैव टू वियर एडिशनल लेयर. जैसे आपने आपका एक अंदर कुछ वेस्ट है, देन टी शर्ट्स है, और उसके एक नहीं, एक स्किन फिट चाहिए आपको. स्किन फिट होता है, टाइट्स जो होता है स्किन ना, वो जरूरी है, बिकॉज पीटर्स मारी में अपने काफी ठंड होती है. अभी अभी तो राइट नो पता नहीं, बट नॉर्मली टेम्परेचर गोज बिलो 5 और विंडी होता है. तो एक जो होता है टाइट चाहिए, और देन उसके ऊपर आपका नॉर्मल टी शर्ट्स विद द बिब, एंड अगर जरूरी है तो उसके ऊपर आप एक लेयर ले सकते हो, एंड देन वो आफ्टर 5-6 किलोमीटर यू कैन थ्रो इट आउट. ये हो गया अभी टी शर्ट के बारे में. दूसरा ऐसा है कि ये मैं नॉर्मली यूज करता हूँ
ये जो बफ है, आपके पास दो बफ होनी चाहिए। एक बफ, हम्म ये मैं आई एम ए वेरी बिग टाटा फैन, तो मैं टाटा का यूज करता हूँ। हम्म ये जो है ना, ये ऐसा आपको रहेगा, तो दैट हम्म कवर योर ईयर। जो हम्म कि आपको जो टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर कोल्ड, यू नीड टू बी, हम्म यू नीड टू कवर योर ईयर, ठीक है। हम्म ये ऐसा है। अभी अगर आप दोपहर आफ्टरनून अगर यही बफ लेके रन करते हो, तो यू कैन जस्ट ऊपर स्विच करो उसको, और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट, आपको उसको कवर कर सकते हो आपका हेड। हम्म इसका एडवांटेज ऐसा है कि ये हेड बफ से कवर करने के बाद में यू कैन जस्ट स्प्रिंकल वाटर ऑन द हेड, तो वाटर जो है वो बफ पकड़ के रखता है, तो दैट गिव्स यू बिग कंफर्ट। हम्म दूसरा दूसरा जो बफ है, ये आप ऐसा गले में डाल सकते हो। अभी क्या है, जो विंड और कोल्ड रहा ना, तो आपको यहाँ पर भी काफी, दिस इज ओपन रहता है ये पार्ट, हम्म दिस इज, तो ये इसमें भी काफी ठंड लगती है। हम्म वो भी अभी यहाँ पे है जो कॉमरेड्स वाले, दे शुड ट्राई दिस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। अभी वहां डायरेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, बराबर है। आप ये अभी जो लॉन्ग रन है आपके, उसमें ये दो यूज करो। और इसका ये तो मैंने समझ में आया कि आपको जब इनिशियली आपको यू हैव टू कवर योर ईयर, बाद में आप हम्म उसको ऊपर उठा सकते हो, और आपका जो है हेड है वो प्रॉपरली कवर करो, तो दिस विल गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द सनशाइन, ठीक है। करेक्ट 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 और कैसा होता है कि व्हेन यू रन द हीट गोज अप, एंड दैट एंटायर हीट एक्यूमुलेट्स बिहाइंड योर नेक, करेक्ट। हम्म तो ये जो बफ है ना, ये सामने से ये बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग एंड लिटिल वाटर, ये थोड़ा वेट होता है। तो यू इफ यू, ये सर, आप इसको फिर कवर चेंज करोगे ना साइड, तो यू विल फील क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द, ये जो नीचे जो गर्म होता है पूरा आपका नेक का, वहां पर थोड़ी ठंड मिलती है। और विंडी वेदर से भी प्रोटेक्शन मिलता है। हम्म और ये जो पीछे है ना, ये आप ट्राई करो एक बार ड्यूरिंग द रन, जो सातारा में या लोनावाला में काफी ठंड होती है ना, तो ये ट्राई, ये दिस इज वेरी यूजफुल, एंड आई एवरी ईयर आई यूज। अभी अभी कैसा है कि मैराथन स्टार्ट होने के बाद में ना, अराउंड 15 किलोमीटर तक आपको वाटर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट, मिलता नहीं ऐसा नहीं है, देर आर वाटर स्टेशन एट एवरी 2 किलोमीटर, बट द क्राउड इज सच दैट इफ यू आर इन द मिडिल, इट इज डिफिकल्ट टू गो टू द वाटर स्टेशन। तो इससे अच्छा है कि आप है ना, वाटर बॉटल हमेशा, माई सजेशन इज दैट यू कैरी सम वाटर और एनर्जी और वॉट एवर यू रिक्वायर विथ यू। और ये जो है आपके साथ रहने से यू आर कंफर्टेबल। अगर मुझे वाटर नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला, तो मेरे पास है हाफ लीटर इज सफिशिएंट फॉर 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर तक आपको रुकने की जरूरत नहीं, दैट विल सेव योर टाइम। एंड once you cross the 15 kilometer, you can refill the bottle or you can throw it also, but you must carry at least half a liter water with you। अभी इसमें भी कैसा है, ये देर आर, ये जो मेरे हाथ में बॉटल है ना, ये कॉर्क है, इसका आपको अगर खोलना है तो आपको दोनों हाथ का यूज करना पड़ता है, बराबर है। ऐसा खोलो, पानी पियो, फिर लगाओ, बराबर है। ये इसका अगर कॉर्क नीचे गिर जाता है ना, तो यू हैव टू थ्रो इट आउट, आपको कभी मिलने वाला नहीं वो कॉर्क। कोई कहीं भी, कहीं किसी के पैर के नीचे आएगा या चला जाएगा। इससे अच्छा, दिस इज द बॉटल आई नॉर्मली यूज। इसमें कैसा होता है, ये खोलो, लो और लगाओ, वन वन हैंड ऑपरेशन इसका हो सकता है। तो जो भी अभी सुन रहे हैं आप, जस्ट प्रैक्टिस करो ड्यूरिंग जो आपके लॉन्ग रन है उसमें। ये बॉटल आप देख लो, इसमें आप लगा सकते हो ऐसा, और एक इसे खोलो, यू कैन ड्रिंक, जस्ट यू कैन क्लोज इट विद वन हैंड, बराबर है। हम्म फ्यूलिंग कैसे करते हैं फर्दर थ्रू द हाँ, रेस? फ्यूलिंग कैसा है, ये जो हाफ लीटर बॉटल होता है ना, इसमें ड्यूरिंग द रेस में एनर्जाल जो होता है अपने यहाँ मिलता है, पाउडर ले जाता हूँ साथ में, और उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट और थोड़ा उसमें सॉल्ट ऐड करता हूँ, वो साथ में होता है, बट बराबर है। ये तो फिट वोंट लास्ट पूरा 12 घंटा ना, ये तो हाँ, खत्म हो जाएगा एक चार बराबर है। पांच किलोमीटर ये में। मैंने कहा दिस इज फॉर 15 किलोमीटर है, हाँ हाँ। बराबर। उसके बाद में है ना, इसमें ना आप वो जो उनका, एनर्गेट, उनका एनर्गेट हाँ, डाल दीजिए, हाँ। उनका दो तीन इसमें एनर्जी डाल दो। तो कैसा होता है, एवरी टाइम यू डोंट नीड टू गो टू द वाटर स्टेशन, वेस्ट योर 2-3 मिनट्स एवरी टाइम। सो ये बॉटल हमेशा, लास्ट ईयर भी मेरे साथ पूरा 89 जो भी डिस्टेंस था वो मेरे साथ था बॉटल, और दैट इज वेरी यूजफुल। जैसे हम्म एक तो टाइम सेव होता है, नहीं तो हर एवरी टाइम कैसा है, वो जो सप्लाई करते हैं दैट इज 200 ml प्लास्टिक सैचे होता है। हम्म
यू हैव टू ब्रेक दैट सैचे, ड्रिंक इट एंड थ्रो द प्लास्टिक। तो अगर हम्म 3-4 आप इसमें एक साथ कर लेते हो तो और आपको 7-8 किलोमीटर तक कोई रुकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम्म 40 वाटर स्टेशन होते हैं। 40 वाटर स्टेशन पे अगर आप एक एक मिनट भी देते हो, बराबर है, तो 40 मिनट्स इज अ बिग। नो नो करेक्ट। सो देर देर मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस हमेशा होता है कि वाटर स्टेशन पे रुकना नहीं है। हाँ जो हाँ भी हाँ, करना है चलते चलते पिक करो और चलते रहो। करेक्ट करेक्ट 40 वाटर एग्जैक्टली। स्टेशन में 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है ईच। तीस हाँ सेकेंड भी ज्यादा हाँ, स्पेंड कर लिया तो 20 मिनट वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। सो दैट एवरी रनर को ये ध्यान में रखना है कि वाटर स्टेशन में एकदम एफिशिएंटली करना है। वहां पे कोई बुफे लगा नहीं है कि हम देख के चूज करें। वो करेक्ट। 3-4 आइटम ही है, पानी, एनर्गेड, आइसक्रीम सोडा होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स एप्पल एंड अरे सॉरी बनाना एंड पोटेटो होगा। हाँ ज्यादा कुछ लेना भी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, पिक करो, वॉक करो, आगे बढ़ते रहो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। करेक्ट। एंड आप डॉक्टर पाटिल सर खाते क्या है, व्हाट डू यू ईट थ्रू अच्छा द अच्छा, रेस? अभी ये अच्छा, हाँ एक एक मैं हाँ इसमें अभी व्हाट इज अवेलेबल ऑन रूट रूट पे, जैसा आपने कहा ना, हम्म जैसे आई विल रिपीट दैट। एक कोल्ड वाटर होता है, एनर्जेट होता है, बनाना बनाना स्वीट लेमन, हम्म ऑरेंजेस होते हैं, करेक्ट, स्वीट लेमन होता है। ऑरेंजेस होता है, बॉइल्ड पोटैटोज होता है सॉल्ट विथ सॉल्ट, कोक होता है, ग्रीन सोडा होता है, आइस हम्म एंड एनर्जी जेल होते हैं कहीं कहीं पे, हम्म। बराबर। तो दिस इज अवेलेबल ऑन रूट। अभी हम्म इसमें है ना, सभी रनर को ना बनाना लेना ही जरूरी है, मतलब डोंट जस्ट मिस कि भाई जहां बनाना मिले आपको, जितना एक भी आप ले सकते हो, आधा आधा वो लेते जाओ, जिस जहां भी मिलता है, मतलब आफ्टर 10 किलोमीटर। कैसा होता है कि I will come to that point, but let me tell about why banana is necessary. हम्म तो क्रैम्प्स आने के रीजंस है ना, तो क्रैम्प्स नॉर्मली सभी को आती है, कम ज्यादा मतलब लेवल में हम्म जो होगी, मगर कुछ ना कुछ आती है। तो देर आर टू रीजंस फॉर क्रैम्प्स। एक तो यू आर जो आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा ज्यादा पुश कर रहे हो, हाँ, ये रनिंग फास्टर। फास्टर देन योर कैपेसिटी इनिशियली। दूसरा ऐसा है कि लैक ऑफ ये फ्लूइड, जो भी आपने फ्लूइड लेना चाहिए वो सफिशिएंटली नहीं लिए। तो और एनर्जेट वगैरह नहीं लेने से जो सोडियम, मैग्नीशियम एंड ये और एक थर्ड तो अभी एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो बनाना में होता है, सॉरी हम्म मैग्नीशियम हम्म बनाना में होता है। सो जहां भी आपको मौका मिले वहां से आप बनाना थोड़ा थोड़ा चू करते जाओ। सेकंड, ये जो आपको जो कुछ एनर्जी के लिए चाहिए, तो ऑरेंजेस और ये जो स्वीट लाइम वहां मिलता है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। काफी जूसी होते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है, और आपको कुछ ना मतलब नेचुरल एनर्जी मिलती है। हम्म क्योंकि जो ऑप्शंस सब लोग उसके ऊपर काफी डिस्कस करते हैं कि एनर्जी जेल, एनर्जी जेल, एनर्जी जेल, बराबर है, एनर्जी जेल इज गुड, नॉट नो प्रॉब्लम, बट यू कैनॉट सॉलो एनर्जी जेल मोर देन 5 and 6, बराबर है। वो नौशी आता है, और वो नौशी आने के बाद में फिर अगर आपने कोशिश की तो यू यू गेट अ वोमिटिंग फीलिंग, ऐसा मुझे होता है। सो नॉर्मली 4 या 5 एनर्जेल जो है यू कैन सॉलो, उसके ऊपर आपके हम्म पास रहे तो भी आप नहीं ले सकते। तो एनर्जी के लिए ऑप्शन है, आप जहां भी मिले आपको पोटैटो, बनाना एंड स्वीट लेमन जो है या ऑरेंजेस है, ये लेते जाओ थोड़ा 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 थोड़ा, दैट गिव यू गुड एनर्जी। अभी रूट पर जो लिक्विड अवेलेबल होता है, वाटर, एनर्जी, कोक एंड ग्रीन सोडा, बराबर है। मगर ये इसके जो स्टेजेस है, इनिशियली अराउंड 30 किलोमीटर तक एनर्जेट और वाटर होता है, उसके बाद में कोक ऐड होता है, और आफ्टर 60 अराउंड 60 किलोमीटर वो जो ग्रीन सोडा होता है वो ऐड आइसक्रीम होता है। थोड़ा टाइप होता है, हाँ। हाँ, ग्रीन सोडा होता है। तो ये इसके लिए कि आपको टेस्ट अलग अलग टेस्ट मिले, क्योंकि अगर आप आखिरी आखिरी में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एनर्जी है वो आप उसके तरफ देखते भी नहीं है। सो यू हैव टू शिफ्ट टू द कोक एंड देन ये जो ग्रीन सोडा है इसकी टेस्ट बड़ी अच्छी होती है, और उसमें जो शुगर वगैरह जो जो भी एनर्जी के लिए चाहिए वो उसमें होती है। तो दैट इज गुड ऑप्शन। अभी और बॉइल्ड पोटैटो जो है, इसका इनिशियली आप ले सकते हो, मगर क्या होता है बाद में अराउंड 50 किलोमीटर के बाद में आपका जो है ना ये सब सूख जाता है अंदर, मतलब मुंह, तो वो थोड़ा ड्राई रहता है, तो यह तो थोड़ा डिफिकल्टी जाती है, मगर दोज हु कैन
उन्होंने एक स्वीट पोटैटो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। वो काफी है एनर्जी के लिए, अच्छा है। तो डू यू टेक समथिंग एवरी, आपका क्या था, एवरी फ्यू किलोमीटर्स, एवरी पीपल एवरी 7 किलोमीटर्स आई विल ईट समथिंग, ऐसा कुछ प्लान करके करते हैं कि फिर इट इज मोर एज यू फील लाइक? उसके लिए एक थंब रूल है, बिफोर यू फील थर्स्टी ड्रिंक समथिंग। हम्म। कि भाई आप एकदम ऐसा बहुत थर्स्टी लग रहा है तो वो उस स्टेज आनी ही मत दो उसके पहले, क्योंकि हाथ में बॉटल होती है, आपको करेक्ट, कोई कभी भी ले जाने की, सकते हैं। हाँ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव 2 सिप्स ऑफ जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो पीरियडिकली लेना ही, मतलब एवरी 2-3 किलोमीटर फ्यू सिप्स ऑफ एनर्जी है। और कोक तो हम कैरी नहीं कर सकते, और वो तो पेपर कप में वाटर स्टेशन भी अवेलेबल होते हैं। तो जो जो लोगों को आदत नहीं है कोक की, या ग्रीन ग्रीन सोडा तो अपने अवेलेबल नहीं होता है, मगर कोक है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में पीते जाओ। कुछ ज्यादा नहीं, मगर हैव 2-3 सिप्स जहाँ भी अवेलेबल होता है, तो यू गेट यूज टू दैट कोक। नहीं तो नॉर्मली, सिंस वी आर हेल्थ कॉन्शियस, वी अवॉइड कोक नॉर्मली ड्यूरिंग अवर डे टू डे। तो हम्म एक साथ अगर कोक आता है तो थोड़ा नए नए लोगों को, हमारे एक रनर को लोनावाला में काफी प्रॉब्लम हुआ था कि उसने काफी ज्यादा पी लिया, कभी आदत नहीं थी, तो सी गॉट सम स्टमक प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस में ये सब चालू करो कि बॉटल कैरी करना है, कौन सी बॉटल कैरी करना है, इसमें कोक चाहिए, उसमें वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, कि वाटर तो आपका एम्पल मिलता रहेगा, बट यू कैरी एनर्जी ड्रिंक। आपने जो रोड पर अवेलेबल वो रिफिल कर सकते हो इनिशियली। 15 किलोमीटर तक आपने अगर यहाँ एक बॉटल आपके साथ है तो यू आर कंफर्टेबल दैट मच ऑफ लिक्विड। हम्म। अभी ये एक हो गया रूट के ऊपर। अभी क्रैम्प्स जो है ना, अभी मुझे लगता है कश्यप, हमने रूट पर जो एनर्जी लेना चाहिए उस पर डिस्कस किया है, कि डू यू नीड टू शेयर मोर? No, this is enough. What I also want you to, sir, हाँ talk about is the pacing plan, cutoffs. How do you deal with different हाँ हाँ, cutoffs? ओके When ओके। you start the race, do you have a plan in mind कि I will finish the race in 11 hours and hence मेरा जो cutoff to cutoff planning है वो ऐसे होगा? ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। अच्छा, अभी कैसा है कि मैं जो हर साल प्लानिंग करता हूँ, आई टारगेट 10 और 45 मिनट्स इज माई टारगेट। हाँ। आई नेवर गो फॉर सम एम्बिशियस टारगेट, क्योंकि मेरा हाँ टाइमिंग जो है फुल मैराथन तो नॉर्मली 3 और 54, 355, 350 ऐसा रहता है मुंबई का। यहाँ पे हाँ। तो मैं डी सीडिंग में होता हूँ। तो आई नेवर ट्राइड कि भाई 10:45 के ऊपर मैं टारगेट रखूँ, और आई प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अब इसका ये हाँ, प्लानिंग कैसा होता है, आई विल गो इन लिटिल डिटेल, तो ही समझ में आएगा कैसे प्लानिंग करना। करेक्ट। अभी मेरा टारगेट है 10 और 45 मिनट्स, बराबर है। हम्म 10 और 45 मिनट्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, हाफ हम्म डिस्टेंस यानी सेकंड हाफ डिस्टेंस, बराबर है। अभी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 5 और 55 मिनट्स में होना चाहिए, फर्स्ट हाफ। 5 hour 50 minutes, ओके, मतलब 6 घंटा। 15 मिनट, हाँ, 5 और 15 मिनट्स। और वन सेकंड के फाइव लिए 5 hour 5:15। 5:15, और सेकंड जो है 5:30 रखो, बराबर है। हम्म तो हम्म ये हो गया 10:45 हो गया। हम्म अभी ये जो 5:15 है फॉर 45 किलोमीटर, द डिस्टेंस इज रफली 90 किलोमीटर फॉर डाउन रन। हम्म तो 45 जो किलोमीटर है आपको 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स में कवर करने हैं। हम्म आई डिवाइडेड दैट अगेन इन 3 पार्ट, 15, 15, 15, हम्म बराबर है। तो हम्म ये 5 आवर्स एंड 15 मिनट जो है, इसमें मुझे 45 किलोमीटर करना है, तो फर्स्ट 15 किलोमीटर होने चाहिए 1 और 45 मिनट्स में। हम्म से 30 किलोमीटर जो है वो मुझे 3.5 आवर्स में मैंने क्रॉस करना चाहिए। हम्म और हाफ डिस्टेंस जो है वो जो 5 और 15 मिनट्स में क्रॉस करना चाहिए। अगर ये रहा, तो देन नेक्स्ट पार्ट है, जो है आप सिमिलरली फॉलोइंग द सेम पैटर्न यू कैन अचीव। उसके लिए जो है 5 और 15 मिनट में हाफ डिस्टेंस क्रॉस कर लिया। हम्म उसके बाद में 5-5 मिनट आप बढ़ा दो उसमें, हम्म तो 7 और 5 मिनट्स जो होता है, हम्म 7 और 5 मिनट्स हो गया, 45 + 15, 60। हम्म देन 75 होगा, 8 आवर्स 55। हम्म
एंड बैलेंस 15 किलोमीटर के लिए 10:45 ऐसा इक्वली हम्म कर लेता हूँ। पर ये कैसा है, when there is no issue, absolutely no cramps, तो ये पॉसिबल है। हम्म। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आया, क्रैम्प्स आए, तो ये सब है ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आपका। देन यू हैव टू वॉक अ लॉट टिल द क्रैम्प सब्सिडाइज। जब तक हम्म। क्रैम्प सब्सिडाइज नहीं होते यू कैन नॉट स्टार्ट रनिंग, क्योंकि रनिंग करने के बाद में फिर से वो रिकवर होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो यू हैव टू वॉक, थोड़ा पानी पियो, एनर्जी पियो, और सब ट्राई टू सब्सिडाइज दैट क्रैम्प, एंड वन द क्रैम्प सब्सिडाइज देन यू कैन स्टार्ट रनिंग इजीली। हम्म स्टेजिंग, तो ये प्लानिंग तो होता ही है। मैं सभी को, जैसा अभी कैसा है कि आई एम 4 आवर्स रनर, तो हम्म मेरा ये 10:45 इज वेरी मतलब कंफर्टेबल है, बराबर। इट्स हम्म नॉट एम्बिशियस टारगेट, बट जो अभी और ये जो टारगेट है, जो जिन्होंने 4:20 के नीचे किया है, उनके लिए पॉसिबल है। हम्म हम्म। अगर किसी का 4:40 है, 4:50 है, तो उन्होंने उनका टारगेट रिशेड्यूल, मतलब वो सोचना चाहिए कि भाई ये आई 10:55 पॉसिबल नहीं है। दे कैन थिंक सो अबाउट 11, करेक्ट। सो 11:30 और मोर उधर, देन। या देयर एक माई वन एडवाइस इज कि एक तो हम हाफ फुल मैराथन करते हैं क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद हम 4 महीना का ट्रेनिंग करते हैं टू डू अ एंड वी डू अ 56 65 56। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स यू गेट आइडिया कि आपका 65 वगैरह क्या एवरेज स्पीड में खत्म होता है, ओके। 6:30 है, पौने 7 है, 7 है। एंड अकॉर्डिंगली break the plan, then make a plan for say 10:55 and all, ओके and फिर उसके हिसाब से यू ब्रेक द कट ऑफ। ओके। तो जैसा आप बोल रहे कि हाफ कर दिया मैंने और उसको 15 किलोमीटर कर दिया, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट जो आपके लिए इट करेक्ट। हैज वर्क फॉर यू। जो मैं करता हूँ वो कट ऑफ टू कट ऑफ ब्रेक कर देता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, कि ओके हर हर कट ऑफ मेरे को क्या टाइम तक ब्रेक करना है। तो ओके। आई विल जस्ट नाउ दैट आप मेंशन किया, आई विल जस्ट शेयर हियर मैं व्हाट डू आई कैरी विथ मी ऑन द रेस डे, सो दैट जस्ट इसको मैं लैमिनेट करके, ये या अभी दिख रहा है ना, ओके। इसको मैं लैमिनेट करके कैरी करता हूँ। ओके। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टेन हाँ फिफ्टी हाँ फाइव हाँ। मेरे पास था है ओके। कि 18, पहला कट ऑफ 18 किलोमीटर पे है, दूसरा फिर 11.5 किलोमीटर में है, फिर ओके। तीसरा और 13 के बाद। तो उस कट ऑफ में मेरे को क्या स्पीड से भागना है, ओके। एंड अकॉर्डिंगली फिर उसमें वो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, वो यहाँ पे बजट हो जाता है। फिर वो अगर डाउनहिल है ज्यादा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वैसा करके ब्रॉडली कि पहला कट ऑफ मुझे 2 घंटा 22 मिनट में 21 मिनट में करना है, दूसरा कट ऑफ 3:47, फिर ओके। जैसा आप बोले तीसरा कट ऑफ तो हाफ वे होता है, हाँ वो फिर होता है, पांच हाँ। अठारह में। तो ब्रॉडली जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही है, इट इज जस्ट इंस्टेड ऑफ 15 किलोमीटर इट इज कट ऑफ टू कट ऑफ। ओके ओके So that is another way of doing it. So I carry this with me, ओके। laminated. वैसे तो मेरे दिमाग में भी होता है बट लैमिनेट करके कैरी करता हूँ, सो दैट चाहिए तो कभी भी रेफर कर सकते हैं, ऐसा मोर लाइक दैट। कट ऑफ का कैसा है, कैसे कि मुझे लगता है ये कट ऑफ है ना, अगर आप लेटस कि हाफ डिस्टेंस के लिए 6 आवर इज कट ऑफ, बराबर है। हम्म किसी ने नेक टू नेक 6 आवर में क्रॉस किया है, बराबर है। हम्म। डू यू थिंक ही विल फिनिश द मैराथन? No, but then you're planning. So it never 6 hours. When I think it is against my timing, five. So my like if I want to do in 10:55, मेरा फर्स्ट हाफ इज इन 5:18, जैसा आप बोले 5:15 में हाँ होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बराबर, हाँ। 5:18। So you will never plan and you should never plan for a ओके। 12-hour finish. You should always plan for worst case 11:45, otherwise if you are a slow runner 11:30 के लिए प्लान करो, करेक्ट। और फिर बजट करो कि शायद थोड़ा और लेट हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो रॉन्ग होगा। 12 घंटा के लिए कभी प्लान नहीं करना है, नहीं बिकॉज करना चाहिए, उसमें हाँ। रिस्क हो जाता है, टेंशन ज्यादा हो जाएगा मेन तो। आई विल शेयर हाँ माय एक्सपीरियंस ऑफ 2013, बराबर हाँ है। हाँ 2013 में क्या हुआ था, आफ्टर मुझे लगता है 45 किलोमीटर, स्टॉर्म स्टार्टेड, हाँ हाँ। एंड इट वाज अगेंस्ट द विंड, जो हाँ, अगेंस्ट द रनर, या यू आर रन था, रनिंग अगेंस्ट द विंड। करेक्ट। एंड काफी मतलब मिस हुआ। तो उस साल जो 12 आवर बसेस थी, दे रन हाँ जस्ट लाइक अ क्लॉक, 6 आवर एंड 6 आवर्स फॉर हाफ हम्म डिस्टेंस। दे लाइक मैथमेटिकल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दे रन दैट वे। कोई भी 12 आवर बस पहुंच नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ द, क्योंकि उनके कैलकुलेशन सब फेल हो गए, क्योंकि वो रनिंग पॉसिबल नहीं था फॉर सम 10-15 किलोमीटर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, 2003 की सिचुएशन थी। हम्म। ये जो है जिसको भी कंप्लीट करना है उसको कम से कम हाफ आवर तो रखना ही है, हाँ, बफर रखना ही है, बफर नोबडी रखना ही शुड है, हाफ प्लान फॉर टाइम।
12 आवर्स, एंड ऑल्सो स्टार्टिंग का जो 7-8 मिनट वेस्ट होता है हाँ 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 वो हाँ। भी बजट करके ही चलना है। करेक्ट करेक्ट। विदाउट वो के स्टार्टिंग में आप किसी भी सेक्शन में हो, डजेंट मैटर, ए हम्म। ए और बी में होंगे तो अलग बात है, बट अदरवाइज 5 मिनट से लेके 8 मिनट वेस्ट होना ही है, उसको भी बजट करना है। करेक्ट। बिकॉज इट इज अ गन टाइमिंग। दिस टाइम तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी विल नो ऑल ऑफ दैट, बट अदरवाइज ऑल्सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ गन टाइमिंग, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रेस, बराबर। राइट? तो माय सजेशंस टू दोज हु आर हियर एंड दोज हु आर लिसनिंग, तो आप क्या करो, यू यू प्लान फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। विदाउट प्लान जाना इट इज या नॉट या यस, एडवाइजेबल। एब्सोल्युटली। हाँ, यू चेक आउट, उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएंगे डिपेंड ऑन द सिचुएशन। उसमें हो सकता है यू फेल टू अचीव सर्टेन पॉइंट, बट कैसा होता है कि यू नो कि भाई मुझे फर्स्ट कट मेरा कट ऑफ है, कॉमरेड का कट ऑफ तो कहता है दैट इज इजीली अचीवेबल है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। बट अपने आप के लिए 11:30 का प्लान करना है तो मुझे हाफ डिस्टेंस कितने में करना होगा। उसके बाद में जो हाफ डिस्टेंस आपने क्रॉस करना है, मगर हाफ डिस्टेंस को भी आपको 2-3 पोर्शन में डिवाइड करो, और वहां वॉच करते रहो कि ऑब्जर्व करते रहो कि मैं बराबर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। करेक्ट। तो ये प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड ऐसा है कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो फर्स्ट 3 to 5 किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली एनर्जी होती है, वेदर कोल्ड होता है, यू स्टार्ट शूट होते हो ना, जैसा ऐसा होते हो। तो ये जो अगर 3 किलोमीटर है ना, यू हैव टू टेक इट वेरी इजी। अगर आप हम्म 6 मिनट्स रनर हो तो आपको एक एक मिनट ज्यादा देंगे ना, तो दैट दैट विल सेव योर लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट विल हेल्प यू इन सेकंड पार्ट ऑफ योर मैराथन। या तो प्रॉपर वार्म अप होने के लिए गिव सम टाइम, ज्यादा या उसमें टाइम नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 6 मिनट किलोमीटर अंदर तो 7 मिनट दो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद में आप प्रॉपरली वार्म अप होते हो, देन यू कैन रन एट योर नॉर्मल पेस। बट डोंट, जो होता है ना, रश मत करो शुरू में कि ऐसा करेक्ट। लगता है कि एनर्जी रहती है, और देखा है मैंने बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं और फिर लास्ट में स्ट्रगल हो जाता है और पेपर होते यू हैं। बराबर है, क्रैश। क्योंकि क्या होता है, या अगर आप इनिशियली कुछ पुश करते हो तो यू आर वेस्टिंग मोर एनर्जी फॉर द सेम करेक्ट डिस्टेंस। तो इनिशियली आप स्लो स्टार्ट करो, 2-3 किलोमीटर होने के बाद में आप अपने आप रिदम में आ जाओगे। करेक्ट करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। यानी स्लो स्टार्ट, केयरफुल स्टार्ट, इतना क्राउडेड हाँ होता है हाँ तो किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, तुम्हें किसी का धक्का नहीं लगना चाहिए, डिवाइडर पे गिरना नहीं है। वो सब चीजें स्टार्टिंग में बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज अंधेरा भी होता है, लाइट्स होते हैं, बट इट इज वेरी क्राउडेड। बराबर। एंड जो अभी भी एनर्जी है लास्ट का 25 में यूज करो, और करेक्ट चाहिए तो वहां 15 मिनट शेव ऑफ करो, बट करेक्ट। स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट मत करो, नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। पाटिल सर, और एक इंपॉर्टेंट बात, स्लोप्स। On upslopes, what is your strategy? Do you always walk? Do you walk and run? Do you run? Is there a method? ओके, अभी अभी तो डाउन रन है, डाउन रन में फिर भी अपस्लोप्स आएंगे, राइट? फिर डाउन रन है तो परंतु नहीं हाँ। नहीं, वो कैसा है कि दोज हु आर रनिंग मोर देन 10, दोज आर टारगेटिंग मोर देन 10 आवर्स, दे हैव टू वॉक। हाँ। तो वो वॉक कैसा है कि अभी सब कोई अप है, और अब अराउंड 500 मीटर अप है समझो, तो हम्म। यस डू 50 स्टेप्स रन करो, 20 स्टेप वॉक करो। यू हैव टू मिक्स वॉक एंड रन उसमें। या अगर आप कंटिन्यू 500 मीटर या 200 मीटर का भी स्लोप है उसमें करते हो तो यू विल एग्जॉस्ट, अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग द या एनर्जी। अगर करेक्ट। आप उसमें कैसा है कि 50 स्टेप्स रन, 20 स्टेप वॉक, उसमें आपका पेस मेंटेन हो जाएगा। हम्म। तो ये वॉक रन स्ट्रेटेजी हर करेक्ट। कोई करता है, करना ही जरूरी है, मगर उसमें कैसा है कि आप कैसे सिस्टमेटिकली कैसे करते हो। आपको बिफोर यू ओवर एग्जॉस्ट यू हैव टू वॉक, दैट इज हम्म। प्रिंसिपल। मोर एग्जॉस्ट होने की राह मत देखो करेक्ट। सो पहले। वॉक बिफोर यू नीड टू वॉक, जैसा आप बोले करेक्ट। ना, ड्रिंक वाटर बिफोर यू आर थर्स्टी, सेम वे वॉक बिफोर यू नीड टू वॉक एग्जैक्टली। out of exhaustion. बराबर। And walking, everybody, if you see, there are slopes which are very steep. Udhar you will see maximum people are walking. You should हम्म। also walk. जो भी एनर्जी है डाउन में यूज करो, डाउन में स्पीड बढ़ेगा, फ्लैट होगा तब यूज करो। एंड देर आर गोइंग टू बी अप स्लोप्स एंड अप हिल्स इवन इन द डाउन रन, इवन इन डरबन। इनसाइड डरबन यू विल हैव 3 बिग करेक्ट। फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स, यस। 3 लॉन्ग फ्लाईओवर्स। सो हमें हम्म। लगेगा डरबन आ गया अब सब फ्लैट है, ऐसा भी हम्म। नहीं है। व्हेन यू रीच डरबन, देर आर गोइंग टू बी 3 बिग फ्लाईओवर्स, सो करेक्ट। मेंटली बी रेडी फॉर इट, कि उधर उतना टाइम लगेगा, जो भी अपना प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है, but you can't avoid it. But respect the slopes, do not fight them, do not go aggressive on the slopes unless you are a sub 8, there's a 3.5 hour full या marathoner,
340 फुल मैराथन 3 एन आवर, तो ये सब कर सकते हैं. अदरवाइज पीपल हु आर इन द 4 and 440 रेंज should be more conservative, more careful than aggressive. अभी इस साल डाउन रन है, और डाउन रन में जो अराउंड 18 किलोमीटर पे वो लिटिल पॉली, पॉली शॉट दोनों आते हैं, दे आर वेरी Correct. शार्प डाउन. तो Hmm. इसमें ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा टेंड होते हैं कि चलो थोड़ा फास्ट रन करते हैं. Hmm. दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल. कैसा होता है Correct. कि यू आर रनिंग ऑन डाउन, इट्स गिव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर काफ एंड थाई मसल्स. Odds. Yeah, yeah, yeah. तो Hmm. इनिशियली जो है, ठीक है, नॉर्मली डाउन पे पेस अचीव होता है विदाउट मच ऑफ एनर्जी. तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड से डाउन रनिंग करने की जरूरत नहीं है. कैसा है कि यहाँ पे काफी डाउन मिलने वाले हैं. अगर आपके मसल्स काफी एग्जॉस्ट हो गए, मतलब ओवर, बिकॉज ऑफ द रनिंग ऑन डाउन, तो एट द एंड आपको लास्ट 30 किलोमीटर जब रहेगा तो 30 to 20 के बीच में काफी डाउन है. Hmm. लास्ट 10 किलोमीटर दरबान आने के बाद में रोलिंग रूट है, मगर 30 to 10, मतलब ये 20 किलोमीटर डाउन है. अगर आपके पैर में जान नहीं रही ना, तो वो डाउन का कुछ फायदा नहीं मिलेगा. Hmm. तो यू हैव टू कीप सम एनर्जी इन योर लेग्स टू प्रोटेक्ट योर लेग. यू हैव टू, जो डाउन है उसके ऊपर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई चलो मेरा नॉर्मल पेस 6 है ना, तो 550 इज इनफ. उसके ऊपर मैं जा सकता हूँ पर नहीं जाना चाहिए. दिस इज माई क्वेश्चन, Hmm. सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. Correct, correct, correct. Yeah, अच्छा so that you have to be careful. हाँ. Now, so that is, so we discussed a lot about the race day. अभी here, as far as now next 4 महीने का जो ट्रेनिंग है, तो हाँ आप बोले 4 days ऑफ रनिंग करते हैं बराबर है. एंड 60 to 70 किलोमीटर्स पर वीक, मतलब 4 महीना में अराउंड 1000 किलोमीटर्स ब्रॉडली हो जाता है. करेक्ट. डू यू एडवाइज, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आप, डू यू एडवाइज योर ट्रेनिंग्स टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ओके. जिम में जाके कुछ जरूरी है? अच्छा, नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है. ऐसा है कि ये जो फुल मैराथन है उसमें आपके जो मसल्स है वो पूरे टेस्ट नहीं होते. बट व्हेन यू आर रनिंग 90 किलोमीटर, ईच एंड एवरी मसल इज टेस्टेड एंड योर मसल इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक द लोड, देन क्रैम्प्स इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी देयर. बराबर है. हम्म. हम्म. तो हम जो अमरावती में हम लोग जो ट्रेनिंग अभी करते हैं लास्ट 3-4 साल से, या मैं मुंबई में भी था जो टॉप गियर में करते थे ना, तो 2 डेज जो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था. 2 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 4 दिन रनिंग होता था. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स कैसा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये जो नॉर्मली जिम में होता है बॉडी शॉडी नहीं है, हाँ, खाली करेक्ट. ग्लूट्स, काफ मसल्स है, थाई मसल्स है, और कोर ज्यादा है. कोर पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि भाई कोर ज्यादा हम्म. स्ट्रांग होना चाहिए. जो जो भी है, हम्म. तो ये 2-3 सेशन, हमारा 2 सेशन अभी, अभी तो 3 थे, बट नाउ वी आर reduced to 2 सेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 4 सेशंस ऑफ रनिंग. और रनिंग में भी कैसा है कि खाली आउट ऑफ 4 डेज 1 डे ऑन फ्लैट, अदरवाइज 3 डेज जो है वो आइदर हिल और रोलिंग रूट रखे. हम्म. हिल और, हिल और रोलिंग रूट. रोलिंग मीन्स हाँ, करेक्ट, 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 करेक्ट. हाँ, जैसा आपने कहा ना कि दरबार में आखिरी में आपको फ्लाईओवर मिलेंगे या छोटे हिल अप मिलेंगे. तो दैट वे वी हैव सॉर्टेड आउट वन रूट विच इज अराउंड 9 किलोमीटर एंड देयर आर अप एंड डाउन ऑन दैट रूट. सो हम्म. ये जो रनिंग है अभी, कैसा है कि जनवरी और मार्च में, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ जनवरी मार्च फॉर द रनर्स. जनवरी में मुंबई मैराथन होती है 23rd संडे. तो नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ द जनवरी टिल मुंबई मैराथन इज टेपरिंग टाइम, सो देर इज नो हम्म. मच ऑफ द माइलेज. मुंबई मैराथन के बाद में अराउंड 8-10 days goes in the recovery. Then you pick up the training for a Tata Ultra Marathon and again tapering comes after 1 or 2 weeks. बराबर है. तो जनवरी और फरवरी में ज्यादा माइलेज नहीं होता है हम्म. हम्म. बिकॉज ऑफ दिस टू बिग इवेंट. रियली दिस जो माइलेज होता है मार्च अप्रैल एंड मई में. बराबर है. हम्म. तो ड्यूरिंग दिस 3 months यू हैव टू अचीव एटलीस्ट 900, क्योंकि हम्म. मार्च अप्रैल एंड में, जून में तो कोई नहीं, टेपरिंग शुरू होता है आपका. या, करेक्ट, करेक्ट. इवन एट द लास्ट वीक ऑफ में यू स्टार्ट टेपरिंग. बराबर है. हम्म. हम्म. अभी ये जो हमने अभी इस बार जो अमरावती के लिए प्लान किया है, मार्च में 275 to 300 है, अप्रैल में भी 300 के करीब रहा है. तो हम्म. इतना जरूरी है, हम्म. 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 क्योंकि इससे कम में कॉमरेड कंफर्टेबल फिनिश करना पॉसिबल नहीं है. आपको आपका माइलेज इज द, मतलब दैट इज द
और माइलेज इज द मोस्ट नेसेसरी बस थिंग। माइलेज की सिवाय हो ही नहीं सकता है कोई कुछ कभी कैसा लिसन की मैंने 300 किया कॉम्प्लीट किया हो सकता है तो उनके लिए। बट फॉर नॉर्मल जनरल जो क्लास है उनको कम से कम 900 3 महीने में करना ही चाहिए। हम्म। तो कैसा हम्म। होता है कि यू गेट सम कॉन्फिडेंस मिलता है, अरे मैंने किया है। नहीं तो हम्म। वो चांस है, ये लग गया हम्म। अपने कुछ प्रॉब्लम आया तो दे विल नॉट टॉक। बट अगर कंप्लीट किया तो 10 लोगों को बोले मैंने तो 300 ही किया था, मेरा हो गया कॉमरेड। बराबर नहीं, है। दैट इज नॉट द राइट एडवाइस, आई एग्री कि हाँ बिटवीन, आई ऑलवेज से 800 से 1200 के बीच में आप कर होने लो, ओवर करेक्ट 3 to 4 months, जो भी आपका कैपेसिटी हो, और फास्ट करना है तो उससे ज्यादा करो, बट माइलेज इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज इम्पोर्टेंट। करेक्ट एंड सही हाउ इम्पोर्टेंट, लास्ट बिफोर वी क्लोज, हाउ इम्पोर्टेंट इज रिकवरी एंड स्लीप? ओके। आप कैसे वो करते हो? हाँ अभी जो मैं जो मेरे रनर से जो भी मेरे अंडर उनको कहा कि भाई आपको अगर रनर है और वो इफ यू वांट टू रन फॉर लॉन्गर टाइम, 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। लेट अस टेक दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। एक न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट एंड ट्रेनिंग। ये 3 चीजें, ऑल द 3 आर इक्वली इम्पॉसिबल। आप बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो मगर रेस्ट नहीं ले रहे हो, कोई नहीं, आपको यू विल सकम आफ्टर सम टाइम। न्यूट्रिशियस फूड नहीं है तो आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये जो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ट्रेनिंग एंड रेस्ट, ये जरूरी है तीनों चीजें। अभी इसमें मैनेज करना ये हर एक का है। आई कैन नॉट एडवाइज समवन टू मैनेज देयर शेड्यूल। अभी ये जरूरी है इतना समझने के बाद में दे हैव टू मैनेज देयर ओन शेड्यूल डे टू डे करेक्ट, लाइफ। करेक्ट। हाँ इसके लिए कोई आपको एडवाइस नहीं कर सकता है। कश्यप आई विल जस्ट ब्रश अप जो कुछ मुझे यस, यस, ऑफ कोर्स। ये कैसा है कि शूज के बारे में काफी लोगों के हाँ, क्वेश्चन मिसकंसेप्ट है। पूछते हैं शूज के हाँ बारे में, करेक्ट। शूज के बारे में कि जब तक वो फटता नहीं ना पूरा तब तक उसको निकालते ही नहीं है, पूरा फट जाएगा ऊपर से नीचे से। तो नॉर्मली कैसा है कि 600 किलोमीटर लाइफ टाइम फॉर एनी रनिंग शूज, बराबर है 600। अभी तो 600 किलोमीटर मीन्स आपने मार्च और अप्रैल में जो है 600 किया तो दैट शूज इज जस्ट आउट, यू कैन यूज फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वॉक के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी जो है आपको जो शूज आपके यूज कर रहे हो उसके सिवा आपको और 2 शूज लेने पड़ेंगे। ये कॉमरेड में जो यूज करेंगे एक्चुअली आप वो एटलीस्ट 100 मीटर उसमें होना चाहिए, 100 सॉरी किलोमीटर होनी चाहिए, सो दैट यू गेट यूज टू दैट शूज। उसके पहले जो है आपको एक जो अभी आप यूज कर रहे हो वो उसके बाद में और एक नया शूज लेना पड़ेगा टू टू अचीव दैट 900 किलोमीटर। अब ये हम्म। शूज लेने के जब लेते हो तो यू हैव टू सी दैट इट इज ड्यूरेबल एज वेल एज लाइट, दोनों होना चाहिए, बराबर है। करेक्ट। अगर नॉर्मली अभी एक ट्रेंड आया है जो कार्बन प्लेटेड शूज का, बराबर है। तो हम्म। कार्बन प्लेटेड शूज आर नॉट फॉर रेगुलर ट्रेनिंग, दे आर हम्म। फॉर जस्ट फॉर इवेंट डे। उसके पहले आप 4 5 एक 100 मीटर करो क्योंकि उसका लाइफ भी 200 किलोमीटर होता है। करेक्ट। तो वो जो है शूज के बारे में आप कंजूसी कोई भी है जो कॉम्प्रोमाइज मत करो। हम्म। 600 किलोमीटर हो गए, जस्ट गेट रिड ऑफ दैट शू, यू कैन यूज दैट फॉर अदर यूज। कैसे हाँ। होता है कि जो आपका जो कुशनिंग है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट सपोर्ट योर नीज। नहीं तो जो नीज की प्रॉब्लम रनर को लेटेस्ट स्टेज में चालू होते दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर शूज जो होते हैं। हाँ। हाँ, करेक्ट। तो शूज के लिए स्पेशल प्रिकॉशन। और जस्ट आई विल सी मैं कुछ मैंने जो निकाले थे पॉइंट उसमें से कुछ रह गया है क्या। रोलिंग रूट है ये है। हाँ अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि रूट डिस्टेंस और कट ऑफ। अभी अभी तक डिस्टेंस फाइनल नहीं हुआ है, रूट मेजरमेंट भी नहीं हुआ है, कट ऑफ टाइम भी फाइनल नहीं हुआ है। ये आप इसके लिए ना आप जो मिलते रहेंगे, यू डोंट गेट एंक्शस कि भाई हम्म। डिस्टेंस कितना है कट ऑफ कौन से है। ये आपको काफी अभी 90 डेज है, आपको इवेंट के 1 महीना पहले एवरीथिंग विल बी क्लियर कि भाई डिस्टेंस कितना है, कट ऑफ कहाँ कहाँ पे है सब। अभी दो अभी जो दिस टाइम ऐसा कर रहे हैं कि 2 स्टार्ट होने वाली डिफरेंट स्टार्ट टाइमिंग के लिए, बराबर वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। डोंट गेट एंग्जाइटी, करेक्ट। करिए डिस्कस मत करो ये कब होगा वो कब होगा, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कश्यप के पास आएगी, ही विल शेयर अस व्हेन एज एंड व्हेन रिसीव्स, बराबर है। करेक्ट। मेरे सभी से ये है कि भाई अपने ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करो और बहुत ज्यादा डिस्कस मत करो किसी से। कैसा है कि आप अपने कोच है, कोच से डिस्कस करो। कैसा है कि हर एक के व्यूज अलग अलग होते हैं और आप करेक्ट। जितना डिस्कस करोगे उतना यू विल गेट कंफ्यूज। अरे वो ये कह रहा है, अरे वो कह रहा है, ये कहता है कि वो चूज करो वो करो, कहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अपने कोच पर जो है उनके ऊपर रिलाई करो, उनसे बात करो और उनका ही एडवाइस फॉलो करो, बिकॉज ही विल टेक यू टू द फिनिश लाइन।
उनकी जिम्मेदारी है। कोई जो बात करता है ना, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई भी एडवाइस करता है कि मैं ये करता हूँ, आप भी ये करो, तो गॉसिप बहुत कम करो। और एक जस्ट जो भी है उनके लिए एक एडवाइस ऐसा है कि ये जो कॉमरेड की प्रिपरेशन होती है ना, उसमें देर आर टू पार्ट्स, एक फिजिकल प्रिपरेशन एंड अनदर इज मेंटल प्रिपरेशन, बराबर है। तो मेंटल प्रिपरेशन की कोई सिलेबस नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। अभी मेंटल बोलते हैं कि जो आप इवेंट के लिए मेंटली टफ होना चाहिए, तो हाउ दिस हैपन्स, हाउ 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 टू डू योर मेंटल प्रिपरेशन। तो मैं हमेशा लोगों को एक बोलता हूँ, मुझे लगता है हाउ फार दिस इज करेक्ट है नहीं है, बट आई ट्राई एंड आई ट्राई टू माई सेल्फ ऑल्सो। इवन कॉमरेड के यूट्यूब जो होते हैं, इस पर आपको क्लिपिंग्स मिलते हैं, जस्ट वॉच इट लेजरली, कोई उसकी Yeah. तरफ ज्यादा मत करो। और वेन यू आर गोइंग टू द बेड, जस्ट 5 मिनट्स ना, वो रिकॉल करो, और उसमें देखो कि यू आर देयर वन ऑफ देम, you are standing at the start line, you are crossing the finish line, just imagine, close your eyes। तो ये विजुअलाइजेशन करो। Visualization technique. Yeah. टेक्निक, हाँ, विजुअलाइजेशन है ना, ये जरूरी है। आप कोई उसको अभी बिलीव मत करो, बट करो। Hmm. अगर आपको लगता है कि ये बकवास है, ठीक है, इसमें आपकी कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। जस्ट बिफोर गोइंग टू द स्लीप, जस्ट 5 मिनट्स, आपने जो भी यूट्यूब चैनल पे ये देखे हैं क्लिपिंग्स, जस्ट रिकॉल दैट क्लिपिंग, जस्ट थिंक दैट यू आर वन ऑफ द रनर, यू आर रनिंग ऑन द रूट। ये सब है ना, ये सब है ना, आपको इट हेल्प्स इट जो मैं बोल रहा हूँ, मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट्स दैट वे। Hmm. और Correct, correct, correct. हाँ, तो ये ऐड करो अपने ट्रेनिंग में, जो भी लोग हैं उनके लिए। अभी कुछ तो एक दो तीन क्वेश्चंस आए हैं। मोबाइल इज अलाउड, मोबाइल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Headset हेडसेट, allowed नहीं है, headset. हेडसेट अलाउड नहीं है, हाँ बराबर है, हेडसेट अलाउड नहीं है। मोबाइल यू कैन कैरी। और मैं आई विल चेक, कोई क्वेश्चंस है तो वी विल टेक दैट, हाँ, अदरवाइज। आपका नंबर शेयर कर दूंगा, लोग पूछ रहे हैं आपका ओके, नंबर। हाँ, चलेगा चलेगा, मैं कोई हाँ, बात नहीं, आई विल यू, कोई भी क्वेश्चन आए तो आई विल हाँ, आंसर। feel free. Patil sir is of course, as we know, helpful and ओके। will continue to guide us. And Patil sir, last question. आपका 10th है. Are you thinking differently? Are you a bit anxious, or it is like any other run? I mean, you're too experienced to worry about it, but ओके। फिर भी. अच्छा. नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अभी आप लोग पूछते हो तो मुझे पता चलता है कि आई एम डूइंग द 10th, अदरवाइज इट इज वन ऑफ वन मोर फॉर मी। हाँ. So, thank you, Kashyap, for giving me this opportunity, and I hope this session. या Uh, दिस सेशन हैज बीन हेल्पफुल. आपका गाइडेंस हैज बीन हेल्पफul. मैं इसको रिकॉर्ड कर किया हूँ. आई विल पुट इट अप ऑन यूट्यूब फॉर एवरीवन फॉर टुडे, टुमारो, और इवन इन द फ्यूचर. Right, and of course, I'm sure everybody has benefited and will continue to benefit as they hear. okay. मुझे लगता है कि ठीक हो गया। ठीक है. Right, sir, ओके, Patil sir, thank you. थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी। Thank you everyone. ओके ओके, फाइन, बाय बाय। Bye bye. Thanks, Patil sir. Thank you very much, Sirji. Thank you very Yes. much. ओके Very ओके, useful Kashyap ji, session. thank you for organizing this. Thank you, my pleasure. Yes. Thank you, sir. ओके। Thank you. Thank you.